Yes, good morning all of you. So yesterday we had covered your topic in relation to era of coalition, from where this era of coalition had started. Okay, so we had discussed that in that we have seen decline of Congress also and alliance politics, and we had made a comparative study of elections of 1971 and 1999. So indirectly we can say we made a comparison between UPA government and NDA government. So yesterday we had covered this NDA 1 and NDA 2, and NDA 3 and 4 we will be covering at the last part. Okay, that is the last additional topic which I have also sent you the PDF to see. It is related to 3 and 4 that we will study at the last. तो अभी फर्स्ट सेकंड तक क्लियर कर लेना and make a reading because you have missed the class. And this part is very important. This is all the structure. This is the central government since 1989. This shows the structure of the government since 1989. Okay, until today or 2014. So the next topic, which is important from a syllabus point of view, is the political rise of other backward classes. And the topic, as you know, name has been changed: Indian politics, trends and developments. Older name was politics in India since independence, but recent name is this Indian politics. We have to study the trends and developments. Basically, you can understand we are studying the developments which took place after 1989 election. तो after 1989 के बाद ही की जो politics है, we are focusing on those developments. तो उन डेवलपमेंट्स को हमने 5 को शॉर्ट वे में देखा, अब हम उन्हें डिटेल वे में देख रहे हैं. कोलिशन में हमने गवर्नमेंट्स देखी हैं. सो टुडे जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हम नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे इन द इंडियन पॉलिटिक्स और इन द इंडियन सोसाइटी इज द पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब जो हमारे पॉलिटिक्स में था, कुछ टाइप की पार्टीज आ रही थी, कुछ ग्रुप्स आ रहे थे जो किसके ऊपर बेस्ड थे, बैकवर्ड क्लासेस. तो ये रिसेंट था, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस भी कोई चीज है, इस टाइप की भी कोई सोसाइटी में ग्रुप है, ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे. वी ओनली रिकॉग्नाइज SC and SC people, scheduled caste and scheduled tribe के बारे में हमें पता था. We had given them reservations and other privileges to bring them up in the society, to support them. But इस ग्रुप के बारे में किसको नहीं पता था, other backward classes. तो एक इसको भी हमने आज आप देखते हैं, तुम मोस्टली पढ़ते हो रिजर्वेशंस जब हमें जॉब में मिल रहे हैं या एजुकेशन सेक्टर में मिल रहे हैं, SC ST and OBC सुनते हैं ना, OBC. तो this was recognized later on. After this, when we are talking about development on Indian politics after 1989, मतलब 90s के फेज में इसको भी इमर्ज किया है. तो we'll try and understand that ये कैसे इमर्ज हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं था, हमें बस किसके बारे में पता था प्रीवियसली, SC and ST. हमें लगता था अगर कहीं पर एजुकेशन लैक कर रही है, बेसिक फैसिलिटीज जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, एंड दे आर पुअर, लो पॉवर्टी लाइन, दे डू नॉट हैव, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो वी यूज्ड टू मेजरली फोकस ऑन ST and SC क्लास. Okay, we didn't knew about other backward classes, वो हमें पता चला after 1989. So let's take a reading. It's in the very simple language. One long-term development of this period was the rise of other backward classes. So when we are talking about the other important development of this important era is the development or the other of backward classes as a political force. It came into as a politics. Okay, when we start with OBC. You have already come across this term OBC. As a student of 12th, many times you must have heard this word OBC at various places. 6th में 7th, 8th, 9th, 10th while studying SST, बहुत जगह places में आता है OBC, ST, ठीक है, इस टाइप से. This refers to the administrative category other backward classes. इसका short हो जाता है OBC. These are the communities that other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness. Other than SC and ST, OBC भी एक ऐसा सोशल ग्रुप है which is suffering from educational and social backwardness. Social backwardness, all the important facilities, amenities which are required by an individual to live a good and healthy life in a society. तो कुछ बेसिक amenities होती है, requirements होती है सबकी, फूड, जॉब, क्लोथिंग, हाउस. तो ये एक सोशल ग्रुप था जिसको जो डिप्राइव्ड था एक्चुअली, जिसको नहीं मिल पा रही थी इस टाइप की फैसिलिटीज, तो इसको रिकॉग्नाइज किया है एज OBC अदर देन SC and ST. We have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward classes had declined. In the previous chapters जब हमने देखा है कई बार, the power and popularity of the Congress declined. उसके बाद दोबारा they had restored their power and influence.
तो इस टाइप के फेजेस में हमने देखा है, जब हम बोलते हैं कांग्रेस की मेजॉरिटी कम हो गई, पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई, इट मींस उनका सपोर्ट कहां से कम हो गया, बैकवर्ड क्लासेस से। जो लोग सपोर्ट में नहीं आ रहे थे उनके, वो कौन सी थी, यही ओबीसी सेक्शन था, क्योंकि इन लोगों को रिजर्वेशंस नहीं मिल पा रहे थे। कौन से, रिलेटेड टू एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग, क्लोथिंग या बेसिक गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इंप्लीमेंट होती थी एससी और एसटी के लिए, वो इन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इनको रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा था। जबकि सेम प्रॉब्लम ये लोग भी फेस कर रहे थे, जो एससी और एसटी, बट एससी एसटी के बाद पेपर्स आ गए तो दे वर एबल टू गेट एवरीथिंग दे वांटेड, जो पॉलिसीज उनके लिए बनी थी, बट दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये कोई कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं था हमने। तो जब भी कांग्रेस लॉस्ट देयर सपोर्ट एंड पॉपुलैरिटी, इट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ सच रीजंस। दैट इज व्हाई इट्स रिटन देयर आर आल्सो there are communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness. These are also referred to as backward castes भी बोलते हैं इनको. They have already we have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward castes had declined. तो ये वही backward castes हैं, okay? This created a space for non-Congress parties and drew more support from these communities. So here the other parties got the opportunities. जब ये वाली जो बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें हम इनका मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड कास्ट, जो कास्ट बहुत बैकवर्ड रह गई है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट पॉलिसीज उनके लिए नहीं लाई कांग्रेस, तो यहाँ पर ये कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए, कांग्रेस ने इनका जो सपोर्ट था उसे लूज कर दिया। तो यहाँ पर किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो गेन देयर, बोला ना जब कोई एक प्लेटफॉर्म छोड़ता हूँ, मैं किसी का छोड़ रहा हूँ, मैं पहले देखिएगा मुझे किसके साथ जाना है। तो यहाँ पे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उनको उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन कांग्रेस पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना ग्रोथ कर सके, अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज कर सके, अगर वो इन लोगों के लिए काम करते हैं। किनके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब या बैकवर्ड कास्ट क्लासेस के साथ हम मतलब ही वही हो गया, कास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो मिल रहा था रिजर्वेशन, पर ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, एक सोशल ग्रुप था, एक कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के ही लोग थे। So this created a space for non-Congress parties that drew more support from these communities. तो जो non-Congress governments थी, उनको इन communities से support मिलने लगा। You would recall that the rise of these parties first found political expression at the national level in the form of जनता पार्टी। तो अगर हम एक नेशनल लेवल पर देखें, इनको जो रिकॉग्निशन मिला है, इनके लिए someone spoke out, someone recognized this particular backward caste कि इनको भी वो फैसिलिटीज या सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट का। तो which was that party, जनता पार्टी, जो हमने उस दिन पढ़ा था, किस इलेक्शन के बाद आई थी वो, आफ्टर इमरजेंसी पीरियड, जनता पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था। तो उस पार्टी ने इनको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। तभी देखिए यहाँ पर लिखा है, उसको दोबारा से पढ़ लीजिए उस लाइन को। You would recall that the rise of these parties first found political expression at the national level in the form of Janata Party government in 1977, and we know that this election, general election or the Lok Sabha election of 1977 were held after the period of किसके बाद हुए थे, इमरजेंसी के जस्ट बाद हुए थे। तो उसमें जनता जो पार्टी गवर्नमेंट थी, उसने रिकॉग्नाइज किया था इन पार्टीज को। एक्चुअली जो बैकवर्ड क्लासेस थी, इनकी छोटी छोटी पार्टीज बन गई थी, ये ग्रुप्स थे, इनको रिकॉग्नाइज किया जनता पार्टी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द नेशनल लेवल, ठीक है। मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वन मार्क में आ सकता है, व्हिच वाज द नेशनल गवर्नमेंट या टाइम पीरियड क्या था जब इनको रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द जनता पार्टी लाइक द भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी had a powerful ruler base among some sections of the OBC. So when we talk about OBC group, so what were the important regional parties? एक तो नेशनल पार्टी हो गई, we are talking about जनता पार्टी, but there were small parties or we can say regional parties जिन्होंने इनको recognize किया है। Those were क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, and मतलब इनकी वजह से ही they gained powerful ruler base among some sections of the OBC, ठीक है। So this was just the basic introduction, कहाँ से क्या प्रॉब्लम थी, why they were not getting the recognition, और जब recognize किया तो किस गवर्नमेंट ने किया, किस ईयर में किया, किसके अंडर किया, and why they were becoming so important. So now the next topic is मंडल implementation. तो this part तो हमने थोड़ा सा समझा है इसको, we'll still continue it. अभी हम पढ़ेंगे आगे मंडल कमीशन के बारे में। इसलिए हमने मंडल कमीशन के बारे में नहीं पढ़ा है, वो इससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मंडल इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इसको पढ़ रहे हैं, ओके। मंडल इम्प्लीमेंटेशन, तो मंडल कमीशन, मंडल इम्प्लीमेंटेशन इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पे भी मंडल कमीशन का नाम आता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओबीसी और वी कैन से रिजर्वेशन।
ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ओबीसी के मंडल कमीशन से आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो उसके बारे में अभी मंडल कमीशन का तो पूरा डॉक्यूमेंट है पीछे, विद ट्रायल एंड लेसन कहां से आया, कैसे इमर्ज हुआ, हु आर द फाउंडर्स। बट उससे पहले मंडल इंप्लीमेंटेड, इस मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी दैट वर इंप्लीमेंटेड, किस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए, तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट वर द आउटकम्स, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। So in the 1980s, जब S लग जाता है तो we are not only talking about 1980, we are talking about the whole decade of 80s, 10 years की बात कर रहे हैं, 1980 से 1989 तक, ठीक है। तो in the decade of 1980s, जनता दल brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs। तो जनता दल जो है एक ग्रुप को बनाया इन लोगों ने कॉम्बिनेशन से, जो किसके ऊपर वर्क कर रहा था, ओबीसी ग्रुप के ऊपर वर्क कर रहा था। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, अब याद आया नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट कौन सी साल बनी, किस ईयर में आ गई थी, 1989 में। 1989 के इलेक्शंस में जब कांग्रेस अपोजिशन में बैठ गई, जो कोलिशन हुआ, पहला कोलिशन जो गवर्नमेंट बनी थी वो कौन सी थी, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस, तो जो ये गवर्नमेंट थी जो 1989 में जब गवर्नमेंट बनी, ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, तो इसने जो सबसे पहला काम किया, मंडल की जो कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए थे ऑलरेडी पास्ट से 1977 से ही चल रहा था मंडल का इशू, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। एक कमीशन भी बना हुआ था, उन्होंने अपना रिकमेंडेशंस भी दे रखी थी क्या क्या चीजें होनी चाहिए टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओबीसी पीपल, बट उसे इंप्लीमेंट अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो 1989 में जब कौन सी गवर्नमेंट बनती है हमारी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है हमारी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है हमारी 1989 में। तो इस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया क्या, मंडल कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस थी, ऐसा ऐसा होना चाहिए फॉर दिस पीपल, तो इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब इंप्लीमेंट किया तो देखिए क्या फिर होता है। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन फर्दर हेल्प इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स में अदर बैकवर्ड कास्ट का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ से बहुत एक, जब हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट और ट्रेंड्स के बारे में इंडियन पॉलिटिक्स, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके इंप्लीमेंटेशन की वजह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वी टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। इसी तो इस चैप्टर में हम वी आर टेकिंग ओनली दोस टॉपिक्स व्हिच हैड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर दोस इवेंट्स। कोई भी इवेंट हुआ तो ये इवेंट हुआ और खत्म नहीं हो गया, इसका इन्फ्लुएंस हम आज भी देखते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। रैलीज में, एजेंडाज में ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंटेंस नेशनल डिबेट for and against reservation in job made people from the OBC communities more aware of this identity। अब क्या हो गया, अब डिबेट होने लगी। जब ये इंप्लीमेंट कर दिया नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, रिकमेंडेशंस जो थी मंडल कमीशन की, इनको इंप्लीमेंट कर दिया, तो पूरे कंट्री में डिबेट्स होने लगी अगेंस्ट और इन सपोर्ट। कुछ लोग सपोर्ट में, जो लोग ओबीसी के हैं दे विल सपोर्ट, दो पार्टी सपोर्ट करती हैं लाइक जनता पार्टी और अदर रीजनल पार्टीज जो सपोर्ट कर रहे थे, और जो अगेंस्ट थे, तो बहुत ज्यादा डिबेट्स होने लगी। जब डिबेट होने लगी तो ओबीसी पीपल की जो पॉपुलेशन है दे रियलाइज कि उनकी क्या राइट्स है, उनकी क्या वैल्यूज हैं, उनको क्या इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, उन्होंने आज तक रियलाइज खुद नहीं की थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि नेशनल लेवल पे भी उनका इशू भी कोई उठाएगा, उनको इस टाइप से इंपॉर्टेंस मिलेगी। That is why a word is used, the intense national debate for and against the reservation in jobs made people, जब उन्हें रिजर्वेशन की बात की गई जॉब्स में सेंट्रल लेवल पे, made people from the OBC communities more aware in this identity। वो लोग और अवेयर हो गए अपनी राइट्स के लिए। Thus it helped those who wanted to mobilize this group in politics। This period saw the emergence of many parties and sought better opportunities for OBCs in education and employment। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पीरियड में 1989 के 90s की फेज में अगर हम बोले, बहुत सारी अदर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी जो किसके ऊपर बेस्ड थी, उनका एजेंडा क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ओबीसी के ऊपर उनकी आइडियोलॉजीज थी। ऐसी छोटी छोटी पार्टीज इमर्ज होने लगी, और इस पार्टी से इमर्ज होने की वजह से देयर वाज मेनी पार्टीज एट द सेंट्रल लेवल आल्सो टू सपोर्ट दिस रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। उसकी वजह से उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। देखेंगे तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, emerged many parties and sought better opportunities for OBCs in education and employment, and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBC। तो it means indirectly ये बोलना चाह रहे हैं, अब उनकी जो अवेयरनेस आ गई थी उनके अंदर कि हमारी राइट्स क्या है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, किन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, विच आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली,
इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी मेंबर। जो जनरल को मिल रहा है वही ओबीसी को मिलना चाहिए, जो एससी को मिल रहा है वो ओबीसी को भी मिलना चाहिए। तो इट मींस उनके अंदर क्या आने लगी थी, अवेयरनेस आने लगी। ठीक है, these parties claim that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBCs should get adequate representation in the administration and have their due share of political power. Now the next question they raised is, they said when there was a survey, we can say population का हमें पता होता है कि इनका रेशियो कितना परसेंट है। So at the last they said कि if we see the ratio of other backward caste or the backward caste or OBC people in our country, बहुत मेजॉरिटी में है, बहुत ज्यादा नंबर में ये लोग हैं बैकवर्ड कास्ट के, तो उनकी अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशंस मिलने चाहिए उतने परसेंट, उतनी उनको पावर्स मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट में टू कंटेस्ट इलेक्शन, उनको रिजर्व सीट होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर बात होने लगी, क्योंकि कोई छोटा सा ग्रुप नहीं था ओबीसी का कि कोई छोटा सा ग्रुप है उनके लिए लड़ना है। हमारी कंट्री में देखें तो ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमारी ओबीसी पॉपुलेशन में आती है, तो उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट रखा कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की पावर में, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं इनकी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, इस तरह से जॉब्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द रिकमेंडेशन, और ये सारी रिकमेंडेशन किसने दी थी, द मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन क्या नाम पढ़ेंगे, बस पता होना चाहिए जब ये मंडल इंप्लीमेंट हुआ तो ये चीजें सामने होकर के आई। ठीक है, पिक्चर्स देखी थी जब मंडल इंप्लीमेंट हुआ तो देखिए क्या क्या हो रहा है। बीजेपी विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम एनएफ गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से बीजेपी ने अपना सपोर्ट हटा लिया। इससे पहले हमने पढ़ा नेशनल फ्रंट कौन सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी, पर 2 इयर्स ले रही, उसके बाद वो विड्रॉ कर लिया बीजेपी ने सपोर्ट और ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। तो देखिए यहाँ पर स्टॉर्म ओवर एडिशनल कोटा, जो कोटा ऐड कर दिया ओबीसी का, उसके ऊपर स्टॉर्म आ गया, तूफान, disturbance, unrest in the city and country। ठीक है, you can see pictures of violence also, because मैंने बोला बहुत डिबेट चलने लगी, तो डिबेट इन द सेंस डिबेट तो चल रही थी, वायलेंट एक्टिविटीज भी हो रही थी। बंद ब्रिंग लाइफ इन दिल्ली टू हॉल्ट, बंद हो गया, स्ट्राइक्स हो गई दिल्ली में। ठीक है, सोसाइटी ऑन कास्ट लिमिटेशंस, सो दीज आर सम ऑफ द पेपर कटिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फेज। नीचे लिखा है देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट spark of agitation and political upheaval। जब इसको जनता, हमने बोला था हमारी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, तो इस टाइप की सिचुएशन हो गई थी हमारी कंट्री में, जहाँ पे हम बोले इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस रिपोर्ट स्पार्क ऑफ एजिटेशंस, प्रोटेस्ट होने लगे, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए और एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया हमारी कंट्री में, अनरेस्ट, सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट हो गई थी। सो नाउ important part is the mandal, and I am not sure this is a part of the syllabus or not, 50-50 है, but I think जब हम स्कूल में आ रहे हैं you should know that you can use this content to write your answers, कहीं ना कहीं important होगा, छोड़ने में फायदा नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये है या नहीं है, हल्का सा डेवलपमेंट में ऐड किया हुआ है पर एक इंडिविजुअल टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है। पर जब हम डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे इसको, हमने मंडल इशू पढ़ा था, 5 डेवलपमेंट्स हम जब पढ़ रहे थे जो हमारे 90s में हुआ, तो आई थिंक वी शुड रीड इट, अदरवाइज तो मैं कट कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, so the Mandal Commission, now it's like a story, you have to understand by it step by step कहाँ से शुरू हो रहा है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, we'll read it together, just see to it। Reservations for the OBCs were in existence in southern states, ठीक है, since 1960। If you talk about the reservation जो OBC को मिलता था वो हमारे साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था 1960s से, जो 60s का टाइम पीरियड था, 60s का डिकेड था, साउथ इंडिया में इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था कि ऐसे भी कोई कम्युनिटी, ऐसा भी कोई कास्ट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया में इन्हें रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया था, तो इसीलिए जो हमने ये सब पढ़ा है नॉर्थ इंडिया का बेसिकली पढ़ा है। साउथ में इनको 1960 से रिकॉग्निशन मिला हुआ था, अगर नॉर्थ में देखें तो पहली बार कब इंप्लीमेंट हुआ 1989, तो इतना गैप है। बट दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, इट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट। हमने अभी पढ़ा था जनता पार्टी जो गवर्नमेंट आई थी 90 से इमरजेंसी के इलेक्शन के बाद, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट द डिमांड फॉर द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन नॉर्थ इंडिया, उन्होंने पहली बार रखा था कि जो ओबीसी है उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, एंड एट द नेशनल लेवल वाज स्ट्रांगली रेज। तो एट द नेशनल लेवल इस इशू को रेज किया था जनता पार्टी ने आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977। 2 ईयर के लिए गवर्नमेंट रही थी नेशनल फ्रंट, सॉरी, ठीक है।
So the next important personal, you have to remember the name. It can come for 1 marks. Karpuri Thakur, the then Chief Minister of Bihar. This person was the Chief Minister of Bihar. Was a pioneer. Pioneer, you can say he was the first person to take the initiative in this direction to provide reservation to certain group, to certain caste, backward caste in the northern India. So when we talk about northern India, giving recognition or giving reservation to OBC class, it was in the state of Bihar, and this initiative was taken by the then Chief Minister of Bihar. Name was Karpuri Thakur. तो कोई पूछेगा पहला इनिशिएटिव नॉर्थ इंडिया में किसने लिया था, किस स्टेट में था, या सीएम कौन था, तो यू शुड नो इट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. His government had introduced a new policy of reservations. तो जो उनकी गवर्नमेंट थी, they had framed a policy for reservation for OBC in Bihar. Following this, तो ये पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट दे हैड मेड सम पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क किसकी, इस पॉलिसी के थ्रू वी विल प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ओबीसी पीपल इन बिहार. तो ये उनके अंडर काम चल रहा था. इसी को फॉलो करते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1978. तो 1978 किसी गवर्नमेंट आ गई थी, जनता पार्टी आ गई थी ना. 76 के जब वो हमारा एंड हो गई थी इमरजेंसी 77 में, तो जनता पार्टी थी अभी 78 में. टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. तो यहाँ पर जनता पार्टी ने कमीशन को स्टार्ट किया और उनको बताया कि उनका काम क्या है, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. तो हमें रिकमेंड करने हैं, मतलब बेसिकली इस कमीशन का आइडिया क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उनके वो आइडियाज बताने थे. ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी थी गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाए कि जो बैकवर्ड क्लास की जो लोग हैं इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इंप्रूव कर सके, इनको रिकॉग्निशन मिल सके. दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर. Following this, the central government appointed a commission in 1978 to look into the matter and recommend ways to improve the conditions of the backward caste. जो backward caste है, इनकी कंडीशन को कैसे improve किया जाए, इसके लिए recommend करो कुछ ideas. This was the second time since independence that the government had appointed such a commission. Therefore, this commission was officially known as Second Backward Caste Commission. इससे पहले भी आया था रिकमेंडेशन, बट उसे नहीं हुआ था वो कंप्लीट, इसलिए ये दोबारा से गवर्नमेंट ने बोला था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. पॉपुलरली नोन एज द कमीशन बाय द नोन एज मंडल कमीशन. बट पॉपुलरली इसको हम क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन, बिकॉज आफ्टर द नेम ऑफ चेयरपर्सन, जो उनके चेयरपर्सन थे, द नेम ऑफ द चेयरपर्सन वाज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. तो उनके नेम पर ही हमने इसको क्या बोला, इस कमीशन को मंडल कमीशन. नेम पता होना चाहिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. ठीक है. तो ओल्ड कंसेप्ट है काफी, बट इसको यहाँ पे देखेंगे हम, स्टार्ट कहाँ पे किया गया, 1989. ऑल्दो जनता पार्टी ने भी इसके लिए वर्क किया है, जनता गवर्नमेंट ने. द मंडल कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट. अब इसका वर्क क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिकली हम देखेंगे इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे. द मंडल कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड रिकमेंड वेज टू आइडेंटिफाई दिस बैकवर्ड कास्ट. अब इनका एम ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें इंडियन सोसाइटी में फाइंड करना है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप है जो बहुत पीछे रह गए हैं, जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, उनका एजुकेशन स्टेटस कैसा है, उनकी सोशल बैकवर्डनेस किन किन रीजन्स में बहुत ज्यादा है. तो इनको क्या कहते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना था, इनको आगे लाकर आना था, इनके लिए पॉलिसीज बनानी थी. तो ये बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव थे मंडल कमीशन के. इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव द रिकमेंडेशंस ऑन द वेज इन विच इट्स बैकवर्ड कुड बी एंडेड. एक तो इन्हें आइडेंटिफाई करना था कौन से ग्रुप्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और किनको हमें रिजर्वेशन देने, और उसके साथ साथ रिकमेंड भी करना है, उसी मंडल कमीशन को रिकमेंड भी करना था कि इन प्रॉब्लम्स को हम उनकी कैसे सॉल्व कर सकते हैं. द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980. तो जो फाइनल एक रिपोर्ट सबमिट करी इस कमीशन ने, टीम होती है ना, लाइक अ मेड अ टीम फ्रॉम योर क्लास, तो उस टीम ने पहली बार जो रिपोर्ट सबमिट करी वो कब करी, 1980 में रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को. बाय देन, लेकिन 1980 तक जनता गवर्नमेंट थी, स्टार्ट जनता गवर्नमेंट ने, ये एस्टैब्लिश किसने की थी, मंडल कमीशन, जनता गवर्नमेंट ने. पर 1980 में क्या हो गया था, डिसॉल्व हो गई थी. 1980 में दोबारा कौन आ गई थी, कांग्रेस, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी. ठीक है. तो जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन. द कमीशन एडवाइज्ड दैट बैकवर्ड कास्ट शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट सिंस मेनी कास्ट अदर देन द शेड्यूल्ड कास्ट.
ये बोल रहे हैं इनको एक अलग से इंपॉर्टेंस दी, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग से एक रिजर्वेशंस मिलते हैं, अलग से प्रिविलेजेस मिलती है, वैसे ही ये जो ट्राइब है, ये जो कास्ट है ओबीसी, इसको भी अलग से प्रिविलेजेस मिले, अलग से रिजर्वेशंस मिले, अलग रिकॉग्निशन मिले इन लोगों को। The commission did a survey and found that backward caste had a very low presence in both. तो जब इस कमीशन की रिपोर्ट रीड की गई तो ये देखा गया कि जो इनका रिकॉग्निशन है, एजुकेशन बहुत लो है, इंस्टीट्यूशंस बहुत लो है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इन पब्लिक सर्विसेज इन लोगों को। It therefore recommended, इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनली डिसीजन लिया कि they will get 27% of seats in education institutions and government job। चाहे एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो, हायर एजुकेशन हो, स्कूलिंग हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हो एट द सेंट्रल लेवल, इन लोगों को कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व कर दिया आउट ऑफ 100? 27% सीट्स बस किसको दी जाएंगी? ओबीसी सेक्शन को। ठीक है, जब इनकी डिटेल स्टडी की, सबमिट की रिपोर्ट मंडल कमीशन ने, इनका डिटेल डेटा बताया कि ये लोग कितना बैकवर्ड रह गए हैं, इन लोगों को रिकॉग्निशन कब से नहीं मिला है, तो उसके बाद गवर्नमेंट वाज ऑन द कंक्लूजन दैट 27% ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द एजुकेशन सेक्टर एज वेल एज इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, और द गवर्नमेंट जॉब्स। सो दिस वाज द बेसिक आउटकम जो पहला था। The Mandal Commission also made many other recommendations like land। उसके अलावा और भी रिकमेंडेशन थे मंडल कमीशन के, जैसे लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या होता है? There were many जमींदार who had captured a lot of land, तो उनसे कुछ लैंड लेकर के किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया? लैंडलेस लेबर्स। जो लेबर्स लैंडलेस थे वो पीजेंट्स की तरह वर्क करते थे उस लैंड में, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको इनकम नहीं मिल पाती थी जो उनकी थी, जो मेहनत करते थे वो भी नहीं मिल पाता था, तो उनको लैंड दिया गया थोड़ा थोड़ा। इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसी। तो ओबीसी की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को भी लाया गया। In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendations of Mandal Commission pertaining to reservation for OBC in jobs in the central government। अब क्या हुआ फाइनली? अभी तक तो क्या था? 20% सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दिस ग्रुप अनाउंस किया था ना 27%, बट अब एक डेट आती है पर्टिकुलर कि इन अगस्त 1990, ठीक है, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। अभी तक तो ये रिकमेंडेशंस दी थी इस कमीशन ने, इसे इंप्लीमेंट कब किया गया? 1990 में, ठीक है, पर्टेनिंग टू रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब देंगे इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अभी तक तो ये रिकमेंडेशन दी थी किसने? मंडल कमीशन ने गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा होना चाहिए अगर हमें इनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना है, बट अभी तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो 1990 में हमारी जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उसने इस आइडिया को बोला हम इंप्लीमेंट कर देंगे इसको, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिया। तो देखिए उसके बाद क्या होता है। दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशंस एंड वॉलेंट प्रोटेस्ट इन मेनी सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे तो सिचुएशन वाज ऑफ अनरेस्ट where there were so many agitations, demonstration against this decision of government to implement this recommendation of Mandal Commission to give reservation at the center for the OBCs to central government jobs. इसके लिए there were protests around the cities in especially North India. The decision was also challenged in the Supreme Court. तो ये decision कहाँ चले गया? Supreme Court में चले गया ये matter and came to be known as the इंदिरा सविने केस। इसका नाम जो पड़ा इंदिरा सविने केस आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ द पिटिशनर, जिसने कंप्लेंट की थी उसके नाम के पीछे ही इस कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका नाम ही यही पड़ गया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इन नवंबर 1992। सो फाइनली इन नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट gave a ruling upholding the decision of the government. Supreme Court had supported the government decision of the government that okay we will implement this recommendation of Mandal Commission to give reservation to OBC people। तो ये कोर्ट ने भी ऑथराइज कर दिया, बोला ये ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। These were some of the there were some differences among political parties about the manner of implementation of decision, but now the policy of reservation for OBC has supported of all the major political parties of the country. But if we see it in the current scenario, everyone has accepted that there should be a reservation for OBC class also. So this was like all the story. तब से 1992 से कोई issues नहीं आए, but it is still one of the important agendas of each and every government. कोई गवर्नमेंट अगर इससे अगेंस्ट हो जाए तो उसका जो वोट शेयरिंग है, पॉपुलैरिटी है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो स्टिल दिस
is playing an important role in the Indian politics. Reservation for OBC. तो इस was a long story. ऐसे ही नहीं आ जाता है. There have been made बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए. रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी देती है कमीशन, बट उसमें से हम देखते हैं क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई. तो इसमें से एक चीज जो इंप्लीमेंट हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और जॉब्स में हमने रिजर्वेशन दी ओबीसी को 90s में. ओके, अंडर द विच गवर्नमेंट? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. So this was all about Mandal Commission. So next topic we will do it tomorrow. आज से इतना है. Actually I wanted to read that topic from the coalition. इसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा. Take a quick reading. Era of coalitions.